सो वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ क्लास 12th और हम स्टडी कर रहे थे ग्रामर पोर्शन। और ग्रामर पोर्शन के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द रूल्स ऑफ these sentences, then we will illustrate with the help of examples the use of these sentences, and then after studying the rules as examples, you will be given the homework, that will be the worksheet. You have to prepare a chart of 10 sentences, each of simple, compound and complex sentence. So welcome students, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो जहाँ तक सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात है, हम स्टडी करेंगे ये सेंटेंसेस हैं क्या, कैसे यूज़ होते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 4 मार्क्स के हमें इन सेंटेंसेस पूछने हैं। सो अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे रूल्स के साथ तो हमारे ये 4 मार्क्स ईजिली कैप्चर हो जाएंगे। सो शुरू करते हैं हम। You will want to use a variety of sentence structures in your writing. There are 3 types of sentences we will study in this lesson. Number 1 is simple sentence, number 2 is compound sentence, and number 3 is complex sentence. So what is simple sentence? A simple sentence has one independent clause, that is one subject and one verb. For example, I live in San Francisco. I is a subject. I is a subject, so simple sentences which has one subject, and then live means that verb, and I live in San Francisco, subject is I, live is verb, and the one which has one subject and one verb, that is a simple sentence. Quite easy. So अगर शॉर्टकट में हम इसको देखिए, याद रखने का तरीका, तो वो सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा दैट इज सिंपल सेंटेंस। देन कंपाउंड सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट आर जॉइंड टुगेदर। कंपाउंड सेंटेंस हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर क्या होगा, इन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क्स इन द सिटी बट शी लिव्स इन द suburbs, and she works in the city, that is one independent clause, and she lives in कोई भी जगह, that is second independent clause, but those clauses are linked together but by the word but, so that is a compound sentences in which there are 2 sentences and which are joined together. Then if we study about compound sentence, you can make compound sentences by joining 2 logically related independent clauses by using a semicolon. सो अब कंपाउंड सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे, और अगर हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो उसके अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक सेमीकोलन की, देन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, एंड थर्ड अ ट्रांजिशन। इन 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और हम इन 3 चीज़ों से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद सेमीकोलन, देन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट किया, आई लव लिविंग इन सिटी, सेमीकोलन, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, सो I love living in the city, that is one independent clause, and there are so many things to do, that is second independent clause. ठीक है। Then using coordinating conjunction, independent clauses, coordinating conjunctions and independent clause. For example, he couldn't watch the show, so he decided to tape it. So he couldn't watch the show, that is one independent clause. He decided to tape it, that is second independent clause, but they are together joined by coordinating conjunction by the word so, that is use. Then coordinating conjunctions की अगर हम बात कर लें, logical relationship and coordinating conjunction, addition and contrast अगर करना है तो but, yet, choice अगर है हमारे पास तो or not, और clause अगर है तो for, result अगर है तो so का यूज करना है हमने। ठीक है, these are the rules. Then एक ट्रिक है इन को याद रखने की, that is fan boys। क्या है? fan boys। For example, FANBOYS, fan boys। now fan boys से वर्ड्स क्या करेंगे, बनेंगे F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yes and S for so। ठीक है, रूल इजी है फैन बॉयज, दैट मीन्स हमने फॉर एंड नॉट बट और येट एंड सो का यूज करना है इन सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है,
Do not use comma every time you use the words and or not but for so and yet. इन वर्ड्स के बाद and के बाद but के बाद और के बाद nor के बाद for के बाद so and yet के बाद हमने कॉमा यूज नहीं करना है हर बार. यूज अ कॉमा ओनली व्हेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन हमने कॉमा का यूज कब करना है? जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा होगा दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को. फॉर एग्जांपल, द नेकलेस वाज ब्यूटीफुल बट एक्सपेंसिव. सिंपल सेंटेंस, द नेकलेस वाज ब्यूटीफुल बट एक्सपेंसिव. अब द नेकलेस वाज ब्यूटीफुल, दैट इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड एक्सपेंसिव दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बट नो कॉमा नॉट एन इंडिपेंडेंट चॉइस. क्योंकि इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं, एक्सपेंसिव है वो चॉइस नहीं है, सो इसको हमने बट के बाद कॉमा यूज नहीं किया. देन ट्रांजिशन, यूजिंग अ ट्रांजिशन के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो ट्रांजिशन वर्ड यूज होगा, देन इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज होगा. फॉर एग्जांपल, आई लव सैन फ्रांसिस्को, हाउएवर आई हेट द ट्रैफिक. सो आई लव सैन फ्रांसिस्को, दैट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड आई हेट ट्रैफिक, दैट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट दोज क्लॉजेस आर ज्वाइंड टुगेदर बाय द वर्ड हाउएवर, एंड दैट हाउएवर इज अ ट्रांजिशन. ठीक है. नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा. फॉर एग्जांपल, जॉन कैन नॉट सेट अप हिज टाइपराइटर, सो बिकॉज द वॉल हैज नो आउटलेट. अब जॉन कैन नॉट सेट अप हिज typewriter, that is one independent clause, and the wall has no outlet, that is one dependent clause, and the one dependent clause and the other independent clause, they are linked together by the subordinating conjunction, that is because. Understood? So if we study example of complex sentence, a complex sentence contains at least one independent clause and one dependent clause. Example, she will go to school in the city until she finds a job. So she will go to school in the city, that is an independent clause. She finds a job, that is a dependent clause. But these two clauses, independent clause and dependent clause, these are linked together by a word until, that is a subordinating conjunction. ठीक है. देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, यूज अ कॉमा आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज इफ इट बिगिंस द सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई फर्स्ट मूव टू द सिटी. So when is a subordinating conjunction, and we use a comma if the dependent clause is in the first part of the sentence. अगर डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के पहले हिस्से में है तो हमने वहां पे कॉमा यूज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर. फॉर एग्जांपल, आई वाज अफ्रेड टू ड्राइव द स्टीप एंड नैरो